طیارے کا عقبی حصہ لرزنے لگا اور پائلٹ کیبن اس طرح اوپر اٹھ گیا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے اوپر اٹھا دیا ہو۔ ٹائر کی لاش پھسل کر کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہم لوگوں نے بھی خود کو گرنے سے بچانے کے لیے سیٹوں کا سہارا لیا۔ میں نے مائیکل کے ساتھ کاکپٹ سے باہر جھانکا۔ روح فرسا منظر مجھے لرزانے کا باعث بن گیا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ طیارہ پٹی کی بالکل آخری سرحد پر ایک چٹان کے سہارے فضا میں معلق تھا۔ اگر پچھلے حصے پر کچھ وزن اور پڑتا تو وہ یقینی طور پر ہزاروں فٹ گہری وادی میں گر جاتا۔ قدرت نے ہمارے بچاؤ کا یہ عجیب سامان پیدا کیا تھا، تاہم اس کے اندر ایک لمحہ ٹھہرنا بھی خطرناک تھا۔ ہوا کا کوئی تیز جھونکا کسی بھی وقت طیارے کو اٹھا کر وادی میں پھینک سکتا تھا۔ مائیکل بے اختیار کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس نے باہر کا منظر دیکھا اور کانپنے لگا۔ زخمی مسافروں میں سے ایک نے حلق پھاڑ کر کہا، سور کے بچے، تم پائلٹ ہو یا گدھے؟ تم نے طیارہ تباہ کر دیا اور مسافروں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دوسری آواز آئی، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تیسری آواز اسی عورت کی تھی جو شاید شدید زخمی تھی۔ اس کے عقب میں کوئی مرد بھی کراہ رہا تھا۔ میں نے لوبو کو اشارہ کیا، وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، لوبو، طیارہ خطرناک حالت میں ہے، دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے لیکن… لوبو نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں ماسٹر، حکم دو، کیا کروں؟ اسی وقت مائیکل کی آواز سنائی دی، آپ لوگ مجھے جان سے ضرور مار دیں، میں مزاحمت نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ طیارہ ایک ابھری ہوئی چٹان کے ساتھ آدھا لٹکا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ہلچل یا بھاگ دوڑ کی کوشش کی تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ آپ پرسکون اور اپنی جگہ پر رہیں۔ پھر اس نے میگ کی طرف اشارہ کیا، میگ، اگر یہ صاحب مدد پر آمادہ ہوں تو ان کے ہاتھ میں جو راڈ ہے اس کی مدد سے کھڑکی یا دروازہ توڑنے کی کوشش کرو۔ مائیکل کا اشارہ لوبو کی جانب تھا۔ لوبو نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ لوبو آگے بڑھتا گیا اور بولا، میرا خیال ہے مسٹر میگ، میں یہ خدمت بآسانی انجام دے سکتا ہوں۔ میگ نے ممنونیت کے انداز میں کہا، شکریہ جناب، اور لوبو دروازے کھڑکیوں پر مصروف ہو گیا۔ اس نے سائیڈ کی تمام کھڑکیاں راڈ مار مار کر توڑ ڈالیں۔ اب وہاں اتنا راستہ بن گیا تھا کہ لوگ مڑ توڑ کر باہر نکل سکتے تھے۔ میں نے یہ ضروری نہ سمجھا کہ مائیکل کی ہدایت حاصل کروں۔ صورتحال ابتدا ہی سے میری نگاہ میں تھی اور کم از کم میگ اس بات کو جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے زخمیوں کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا اور لوبو کی مدد سے اس پر عمل کرنے لگا۔ مائیکل اور میگ میری کارکردگی سے مطمئن تھے، چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم نے زخمیوں کو سنبھالا اور انہیں ان کھڑکیوں کے راستے باہر نکالنے لگے۔ پہلے دو تندرست اور توانا آدمیوں کو کھڑکیوں کے راستے باہر نکالا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ طیارے کے اندر سے باہر پہنچائے جانے والے مسافروں کو سنبھال کر اتار لیں۔ وہ دونوں بیچارے بڑی تندہی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ مائیکل کے چہرے پر اب بھی خوف منجمد تھا، حقیقت سے وہی آگاہ تھا۔ اس نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ چٹان کسی بھی وقت اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کے بعد طیارے کا جو حشر ہوگا اس کا اسے اندازہ تھا۔ میں اور لوبو بھی باہر جانے کے خواہش مند تھے، لیکن اس وقت ان تمام لوگوں کو اس مصیبت میں چھوڑ کر خود نکل جانا غیر انسانی حرکت ہوتی۔ چنانچہ اب جو بھی تقدیر میں لکھا تھا ضرور ہونا تھا۔ میں نے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا تھا کہ موت میرے اتنے قریب موجود ہے۔ ہم ہر کھڑکی اور ہر اس جگہ سے جہاں سے کوئی باہر نکل سکتا مسافروں اور زخمیوں کو باہر نکال رہے تھے۔ بعض مسافر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے انہیں باہر نکلنے کا موقع دیا جائے جو زندہ ہیں، انہیں موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ بہرحال کوئی کسی کو نہیں روک سکتا تھا، جس کا جو دل چاہ رہا تھا کر رہا تھا۔ البتہ مائیکل کی ہدایت کے تحت وہ بہت آہستگی سے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اگر غصے کا اظہار انہیں کرنا ہوتا تو زبانی ہی کر لیتے۔ کسی نے جدوجہد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہی بہتر تھا، ورنہ اگر ان میں کچھ جنون پسند تشدد پر آمادہ ہو جاتے تو پھر خدا ہی حافظ تھا۔ جو مسافر باہر نکلتے جا رہے تھے ہمیں سکون ہوتا جا رہا تھا۔ طیارہ کئی بار ڈگمگایا تھا اور اس وقت بس خدا ہی یاد آ جاتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ طیارہ اب گرا کہ تب گرا۔ زخمی چند لمحوں کے لیے اپنی تکلیف بھول گئے تھے۔ ان میں چند ایسے صاحب دل بھی تھے جو زخمی ہونے کے باوجود ان لوگوں کو کھڑکیوں سے باہر نکال رہے تھے جو ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھے۔ مائیکل لوگوں کے اس جذبے اور تعاون سے بے حد خوش تھا۔ وہ بیچارہ اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں بھول کر خود بھی جلدی جلدی مسافروں کو کھڑکیوں سے باہر دھکیل رہا تھا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ سب زندہ بچ جائیں۔ جہاز کا ڈھانچہ بار بار لرز جاتا اور اس وقت ہم سب دہشت سے کانپ اٹھتے۔ مائیکل نے کئی بار شکر گزاری کے جذبات سے مجھے دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں جہاز کے مسافروں کی جان بچانے کے سلسلے میں پیش رہا ہوں، جس کا اظہار اس نے مجھ سے بعد میں کیا۔
मेरी ज़हनी कैफियत उस वक्त जो कुछ भी थी उसे मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे अंदर उम्मीद व बीम की एक अजीब सी जंग जारी थी। दिल में एक आरजू लरज रही थी कि खुदा करे वो शख्स भी जिंदा बच जाने वालों में हो जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने ये सफ़र किया। बार बार मुझे ये एहसास होता था कि इस कड़े इम्तिहान में डालकर तंजीम ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अगर वो शख्स मेरे इल्म में होता तो मैं उसे बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता, लेकिन अफसोस कि इस वक्त मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और बार बार मैं मुतजस्सस निगाहों से बच जाने वाले मुसाफिरों को देखने लगता जो किसी न किसी तरह खिड़कियों से बाहर निकाले जा रहे थे। उस खूबसूरत लड़की को भी लोगों ने बाहर निकाला जो अभी तक बेहोश थी, और उसके लंबी नाक वाले साथी को भी। उसके अलावा कुछ और लोग भी जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। उनकी तादाद खासी हो गई थी। उसके बाद जिस हद तक भी हो सका माइकल, मैग और 2 एयर होस्टेसों ने, जो अब होश में आ गई थी और अपनी ड्यूटी संभालने के लिए तैयार हो गई थी, कुछ जरूरी सामान बाहर निकाला जो उस वक्त उस जगह काम आ सकता था। जहाज के लरसते हुए ढांचे को खिसकते देखकर बिलाखिर हम बाकी रह जाने वाले भी बाहर निकल आए। सारे मामलात खुदा की मर्जी पर छोड़ दिए गए थे। ये नहीं कहा जा सकता था कि जहाज के ढांचे में जो लोग अंदर रह गए थे उनमें कौन कौन मर चुका था, क्योंकि उन सब लाशों को बाहर निकालना तो मुमकिन नहीं था जो सामान के नीचे दबी पड़ी थी। जहाज का शिकस्ता ढांचा हजारों फुट की बुलंदी पर एक चट्टानी नोक पर झूल रहा था। पहाड़ों पर गहरा सन्नाटा मुसल्लत था। हर तरफ एक हू का आलम तारी था। यखबस्ता तूफानी हवाएं रह रह कर झक्कड़ की शक्ल में नमूदार होती और तंग दर्रों गारों के अंदर तेज सीटियां बजाती गायब हो जाती। माइकल, मैं, लोबो, मैग और दोनों एयर होस्टेसें बेजान मूर्तियों की तरह खड़े कुर्बो जवार के माहौल को देख रहे थे। हम सब एक दूसरे के नजदीक खड़े हुए थे। तैयारा वक्फे वक्फे से खुश्क पत्ते की तरह कांप जाता। दफतन माइकल ने दहशतज़दा अंदाज में कहा, हमें यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है हम लोग जितनी जल्दी इस तैयारे से दूर हट जाएं उतना ही हमारे हक में बेहतर है। ये किसी भी लम्हे गहराइयों में जा सकता है और उसके बाद मुमकिन है कुर्बो जवार के हिस्से भी मुतासिर हों। बराहे करम जल्दी करो। एक बार फिर जिद्दोजहद शुरू हो गई। लोग माइकल की बातों को अपनी जिंदगी की जमानत समझ रहे थे। हरचंद के वो उससे नाला थे, उसे गालियां दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सबके सब उसकी हिदायत पर अमल कर रहे थे। चुनाचे लंगड़े, लूले, जख्मी हाथों और पैरों से माजूर हो जाने वाले भी बर्फ पर खून की लकीरें बनाते हुए आगे खिसकने लगे। यहाँ भी माइकल और उसके साथियों ने जिस हद तक मुमकिन हो सका मुसाफिरों को जहाज के पास से दूर जाने में इमदाद दी। ये काम भी उसी बर्क रफ्तारी से हो रहा था जिस तरह जहाज के अंदर से लोगों को बाहर निकाला गया था। दफतन मुझे अपने अकब से सिसकियों की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक कर पीछे देखने लगा। वो खूबसूरत लड़की होश में आ गई थी जिसे बेहोशी के आलम में लोगों ने बाहर निकाला था। उसका मुअम्मर साथी अभी तक बेहोश था। वो उसी तरह बेजान सा बर्फ पर पड़ा हुआ था। मैं हमदर्दी से लड़की के नजदीक पहुंच गया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मेरी मदद कीजिए, मेरे डैडी पता नहीं ये बेहोश हैं या। लड़की की आवाज सिसकियों में डूब गई। मैंने कहा, उठें, मेरे बाजू का सहारा लेकर उठ जाएं। मैंने झुककर मुअम्मर शख्स की बगलों में हाथ डाल दिए, फिर उसे घसीटता हुआ उस तरफ ले जाने लगा जहां दूसरे तमाम लोग जा रहे थे। लड़की ने मेरी मदद के तौर पर मुअम्मर शख्स के पांव उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें पूरी तरह कामयाब न हो सकी क्योंकि वो खुद भी लंगड़ा कर चल रही थी। बहर तौर किसी न किसी तरह मैं उन दोनों को भी आगे ले जाने में कामयाब हो गया। कुछ लोग अब भी जहाज के करीब मौजूद थे। चुनाचे एक बार फिर मैं उनकी तरफ बढ़ गया, यहाँ तक कि अपनी दानिश्त में जिंदा बच जाने वाले आखिरी आदमी को भी हम उस जगह से दूर हटा ले गए। यखबस्ता बर्फ पर खुले आसमान के नीचे पड़े जख्मियों की आहोजारी से माहौल लर्जा था। उनमें से कुछ शदीद जख्मी थे और उनकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक बूढ़ी औरत की एक टांग कमर के पास से कट चुकी थी और उसके कटे हुए हिस्से से मुसलसल खून उबल रहा था। वो जिंदा थी लेकिन उसके हलक से कराह की आवाज भी नहीं निकल रही थी। फूले हुए चेहरे वाले एक तनोमंद शख्स ने अचानक अकब से माइकल का कॉलर पकड़ लिया और जो ही माइकल चौंक कर पलटा, उस शख्स ने एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर रसीद किया। माइकल गिर पड़ा। वो शख्स बोला, कुत्ते के बच्चे, तूने इतने लोगों को जिंदगी और मौत की कश्मकश में गिरफ्तार कर दिया। ओह, बर्फ के इस वीराने में हमारी जिंदगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने झुककर फिर माइकल का बाजू पकड़ लिया और उसे झटके से खड़ा कर दिया। उसने माइकल के जबड़े पर दूसरी बार घूंसा रसीद करना चाहा तो उसकी कलाई लोबो की गिरफ्त में आ गई। फिर लोबो के उल्टे हाथ ने उसे तकरीबन 2 फुट उछाल कर दूर फेंक दिया। लोबो ने मेरी तरफ देख कर आहिस्ता से कहा, सॉरी मास्टर। मैंने नफरत भरी निगाहों से बर्फ पर पड़े हुए शख्स को देखा। वो कीनातोज निगाहों से लोबो को देख रहा था।
माइकल ने अपना कॉलर दुरुस्त किया और आगे बढ़कर उस शख्स के पास पहुंच गया जो अब उठकर बर्फ की जमीन पर बैठ गया था। माइकल ने कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर, मेरे साथ ये बदसलूकी करने में आपने जल्दबाजी से काम लिया। उसने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तरफ इशारा करके कहा, ये सब बेहिस और बुज़दिल लोग हैं। अगर मुझे इनकी मदद मिल जाए तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूं। तुम्हारे जैसे अनाड़ी पायलट को जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुमने बेशुमार इंसानों को कत्ल कर दिया। माइकल ने कहा, ऐसी बात नहीं है जनाब, आप तस्दीक कर सकते हैं। तैयारा मेरे अनाड़ीपन से यहाँ नहीं उतरा बल्कि उसे अगवा किया गया है। मैं कई घंटे मौत और जिंदगी की कशमकश का शिकार रहकर अपने हवास को काबू में रखते हुए आप लोगों को जिंदा सलामत जमीन पर लाया हूँ। आप नहीं जानते मुझे किस खौफ के आलम में ये वक्त गुजारना पड़ा है। उसके बावजूद अगर आप लोग मुझ पर ये इल्जाम लगाएं तो मैं उसके जवाब में क्या अर्ज कर सकता हूँ। माइकल ठंडे दिमाग का आदमी था, हालांकि वो भी मुतनासिब जिसामत रखता था, लेकिन उसने उसकी तल्ख बातों के जवाब में खुद किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो शख्स बोला, बकवास करते हो तुम। कौन था तैयारा अगवा करने वाला? कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? तुम साफ कह दोगे कि वो हादसे का शिकार होकर मर गया है ना, और इसी में तुम्हारी बचत है। माइकल ने बेबसी से मुस्कुराते हुए हमारी जानिब देखा। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर माइकल, लोगों को इजहार राय की आजादी है, लेकिन ये आजादी अगर हद से तजावुज कर जाए तो फिर उनके लिए मुनासिब इंतजामात भी हैं। आप महसूस न करें, सूरत हाल मेरे इल्म में है और बहुत सौ के इल्म में भी। माइकल ने फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए शाने हिलाए और फिर वहां से हट गया। माहौल पर किसी हद तक खामोशी तारी थी। वो जख्मी भी खामोश हो गए थे जिनके जख्मों की तकलीफ उन्हें बेचैन किए हुए थी। ये खामोशी मुस्तकबिल के फिक्र की अलामत थी। हजारों फुट की बुलंदी पर बेदस्तोपा लोगों की ये बड़ी तादाद यकीनी तौर पर अब मुस्तकबिल के खौफ से लरज रही होगी। बर्फानी चोटियों से उतरने के रास्ते उनके इल्म में न थे और वो पहाड़ों की चोटियां सर करने वाले मुहिम जू भी नहीं थे जो हर किस्म की सख्तियां झेल लेने के आदी होते। आम किस्म के लोग एक आम किस्म का सफर कर रहे थे कि तकदीर ने उन्हें मुहिम जूई की आजमाइश में डाल दिया। वो जो मर चुके थे इस लिहाज से बेहतर थे कि बाद के हालात के लिए उनके सीने खौफ से भरे हुए न होंगे, जबकि जिंदा लोगों में से हर शख्स अपने अपने तौर पर ये जरूर सोच रहा होगा कि उसका क्या अंजाम होगा। मैं और लोबो आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आने वाले वक्त के लिए परेशान नहीं था, अलबत्ता मेरी परेशानी में खौफ का अंसर शामिल नहीं था जो उनमें से बहुत से मासूम लोगों के जहनों में होगा। मैं ये सोच रहा था कि जिंदगी के इस नए मोड़ का देखें क्या अंजाम होता है। अलबत्ता मैं लोबो को दाद दूंगा कि वो उसी कदर बेफिक्र और मस्त नजर आ रहा था गोया अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा हो, बिल्कुल महफूज, बिल्कुल मुतमईन। सुकून और इत्मीनान खुदा की देन है और वो शख्स काबिल रश्क होता है जिसे हर हाल में वक्त गुजारने का फन आ जाए। माइकल, मैग और दोनों एयर होस्टेसें एक जगह खड़े हुए बातें कर रहे थे। गालिबन 3 एयर होस्टेसें और थीं उस जहाज में, लेकिन वो जिंदा न बच सकी थीं। यूं भी जहाज के मुसाफिरों में मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 65% लोग हलाक हो चुके थे। जो बचे थे उनमें से तकरीबन 20% शदीद जख्मी थे और 10% जख्मी तो थे लेकिन खुद को संभाल सकते थे। बकिया वो लोग थे जो खुशबख्ती से महफूज रहे थे। उन्हें कोई चोट ऐसी नहीं आई थी जो काबिल तवज्जो होती। उन्हीं में मैं और लोबो वगैरह भी शामिल थे। लोबो मेरे पास आकर बैठ गया। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने चौंक कर उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर पहाड़ों के अतराफ में नजर दौड़ाने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, मास्टर, लोबो पर वो तवज्जो नहीं दे रहे हो जिसका वो मुस्तहिक है। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मैंने कहा, नहीं लोबो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? वो बोला, बस मास्टर, आ गया। मैंने कहा, गलत फहमी है, इसे जहन से निकाल दो। उसने कहा, नहीं मास्टर, मैं जहाज में अपनी जगह से उठकर तुम्हारे पास आया था उस वक्त जब तुम मिस्टर मैग के साथ खड़े अंदर की कैफियत से वाकिफ हो चुके थे। तुमने मुझे वहां से हटा दिया, हालांकि मैं उस वक्त भी कोई कोशिश कर सकता था। मैंने मुताज्जिब लहजे में कहा, क्या मतलब? वो बोला, पायलट कैबिन का दरवाजा ही बंद था ना, सिर्फ दरवाजा किसी न किसी तरकीब से खोला भी जा सकता था। मुमकिन था हम अंदर उस शख्स पर काबू पा लेते जो तैयारा अगवा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मुश्किल था लोबो। इस तरह यह भी मुमकिन था कि वो जुनूनी आदमी पायलट पर हमला कर देता और तैयारा फजा में ही तबाह हो जाता। उसने कहा, बाहर सूरत चीफ, जैसा तुम पसंद करो। मैं इस सिलसिले में तुमसे कोई फरमाइश नहीं करूंगा, लेकिन मेरी आरजू है कि अपने मामलात से थोड़ा बहुत मुझे आगाह रखो ताकि मैं अपने तौर पर भी कुछ न कुछ कर सकूं। मैंने ठंडे दिल से लोबो की इस दरखास्त पर गौर किया। वो ठीक ही कह रहा था। तंजीम ने मुझे मामले से बाखबर रखा था। अगर मैं भी लोबो को उससे बाखबर रखूं तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। कम से कम तबादला ख्यालात के लिए किसी एक शख्स की जरूरत तो पेश आ सकती थी। और फिर हजारों फुट बुलंद बर्फ के उन वीरानों में कौन से ऐसे राज थे जो बाहर जा रहे थे। चुनाचे लोबो को शरीक राज बनाने में कोई हर्ज नहीं था।
मैंने फैसला किया था कि अगर सुकून के कुछ लम्हात मयस्सर हुए तो लोबो को इस बारे में तफसीलात बताऊंगा। लोबो भी पुरख्याल निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में उस वक्त गहरी चमक पैदा हो जाती थी जब वो चट्टान की नोक पर झूलते हुए तैयारे को देखता था। दफतन वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। खैरियत, किस बात पर हंसी आ गई? वैसे मैं इस बात से मुतासिर हूँ लोबो कि तुम इस खौफनाक माहौल में भी हंस सकते हो। उसने कहा, मास्टर मैं तो उस खौफनाक माहौल में भी हंसता था, तुम्हें शायद याद नहीं रहा। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन इस वक्त किस बात पर हंसी आ गई तुम्हें? वो बोला, बस इस जहाज को झूलते देखकर बेख्तियार बचपन याद आ गया। वो दौर जब हम पार्कों में इस किस्म के तख्तों पर खेलते थे जिसे सी-सॉ कहा जाता है। एक बच्चा एक सिरे पर, दूसरा दूसरे सिरे पर। क्या ख्याल है मास्टर? उसकी बात पर मैं भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। दफतन एक ख्याल मेरे जहन में आया। मैंने लोबो के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, लोबो तुम्हारे जहन में कोई और खास बात है? उसने कहा, मसलन मास्टर। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है लोबो? क्या जहाज के इस हादसे से जिंदा बच जाने वालों के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात नहीं है? उसने कहा, शदीद तरीन मुश्किलात है मास्टर, जिनका ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, हम खुद भी उन मुश्किलात का शिकार होंगे लोबो। उसने कहा, बेशक मास्टर, लेकिन क्या किया जा सकता है? मैंने उससे पूछा, तुम्हारे जहन में इनसे बचने का कोई तरीका है? उसने कहा, नहीं मास्टर, लेकिन क्या तुमने इस बारे में गौर किया है? मैंने कहा, हाँ लोबो, मैंने बहुत गौर किया है। हम जिद्दोजहद करके अपने लिए कुछ आसानियां तो हासिल कर सकते हैं। लोबो संजीदा हो गया। वो क्या चीफ? मैंने कहा, जहाज में लाशों के अलावा बहुत सा सामान भी मौजूद है। जिंदा बच जाने के लिए हम फौरी तौर पर जहाज से बाहर निकल आए थे, लेकिन ये जहाज जिस अंदाज में चट्टान पर झूल रहा था और जितनी देर इसे गुजर चुकी है, इससे इस बात का कयास भी किया जा सकता है कि मुमकिन है ये कुछ देर मजीद इस चट्टान पर टिक जाए। उसने कहा, हाँ इम्कान है चीफ, मगर मैं समझा नहीं। मैंने कहा, क्या इसमें दाखिल होकर हम जरूरी सामान बाहर नहीं निकाल सकते? ये सामान इन लोगों के लिए चंद रोजा जिंदगी तो फराहम कर ही सकेगा जो बर्फ पर खुले आसमान के नीचे बेजारो मददगार पड़े हुए हैं। तुम गौर कर लो लोबो, रात को यहाँ नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी होगी और खुराक किस्म की कोई चीज यहाँ किसी कीमत पर नहीं मिल सकेगी। उस वक्त क्या करोगे? लोबो फिक्रमंदी की निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर बोला, बात दुरुस्त है चीफ, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम दोनों मिलकर पूरा जहाज खाली कर सकते हैं? मैंने कहा, नहीं लोबो, ये बात नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि चंद दूसरे लोगों को अपना हम ख्याल बनाऊं। लोबो ने कहा, वहशत से नीम मुर्दा लोगों में कोई इस बात पर तैयार नहीं होगा चीफ। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर तुम उन्हें आसानियां फराहम कर दोगे तो वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे, लेकिन इस वक्त इस झूलते हुए जहाज के ढांचे में किसी ज़ीरूह का दाखिल होना एक नाकाबिले यकीन सी बात है। अलबत्ता अगर चाहो तो जहाज के अमले से बात कर सकते हो। इसमें भी सिर्फ 2 अफराद हैं, भला और कौन हमारे साथ शामिल होगा? या फिर वो दोनों जवान मुझे काम के नजर आते हैं जिन्हें हमने पहले जहाज की खिड़कियों से बाहर उतारा था। मुमकिन है वो हमारे हम ख्याल हो जाएं। आओ जरा उनसे बात करें। मैं तैयार हो गया। वो दोनों शख्स जो चेहरों से खासे मुहज्जब नजर आते थे, अच्छे खासे तनोतोश के मालिक थे। एक जगह फिक्रमंदी से गर्दन झुकाए बैठे हुए थे। मुझे और लोगों को देखकर उनके चेहरों पर किसी कदर खुश अखलाकी के तासुरात फैल गए। उनमें से एक ने कहा, हेलो। मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम अली है और ये मेरा गहरा दोस्त लोबो है। उन्होंने अपना तारुफ जैक्सन और फ्रेड के नामों से करवाया। मैंने कहा, मिस्टर फ्रेड, मैं भी आप ही की तरह एक मुसाफिर हूँ। स्पेन जा रहे थे हम लोग, लेकिन जिन हालात का शिकार हुए वो आपके इल्म में है। आपने जहाज की टूटी हुई खिड़कियों से बाहर निकलकर लोगों की जिंदगियां बचाने में एक अहम किरदार अदा किया, तो मेरी ये हिम्मत हुई कि आपको मजीद तकलीफ के लिए तैयार करूं। क्या आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुद अपने और इन लोगों के लिए कुछ करना पसंद करेंगे? जैक्सन ने सवाल किया, मसलन? मैंने कहा, रात होती जा रही है और अभी ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि चंद कदम भी जिंदगी की तलाश में निकल सकें। क्या बर्फ पर आने वाली रात हमारे लिए जिंदगी की अलामत होगी? फ्रेड ने कहा, हरगिज नहीं। मैंने कहा, हम दोनों इसी मौजू पर बात कर रहे थे। मेरे जहन में एक नाक़िस सा ख्याल आया है और चूंकि आपने इंसानी हमदर्दी के नाम पर कुछ जिद्दोजहद की है, इसलिए सबसे पहले हमने आपका ही इंतखाब किया कि आपको अपना हमनवा बनाएं। वो बोले, जरूर जरूर, आपका क्या ख्याल है मिस्टर अली? मैंने कहा, जहाज के अंदर जो सामान मौजूद है उसे किसी तरह बाहर निकाला जाए। फ्रेड और जैक्सन चौंक कर मुझे देखने लगे जैसे उन्हें मेरी जहनी सेहत पर शुबा हो। फिर फ्रेड ने कहा, काश ऐसा मुमकिन हो सकता। जहाज की कैफियत आप देख रहे हैं। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि ये अब तक चट्टान पर रुका हुआ क्यों है। हवा के तेज झोंके इसे जिस तरह झुला रहे हैं, इससे तो ये अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी लम्हा ऐसा हो सकता है जब ये गहराइयों में चला जाए।
इन हालात में कोई ऐसा काम कैसे किया जा सकता है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेशक आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन अभी मेरे दोस्त लोबो ने एक बात कही जिसने ये तहरीक मेरे जहन में पैदा कर दी। उसने कहा, वो क्या? मैंने बताया। लोबो ने कहा कि इस झूलते हुए जहाज को देखकर उसे बचपन याद आ गया जब वो एक तख्ते पर बैठकर इस तरह झूला करते थे। मिस्टर फ्रेड, अगर एक बच्चा तख्ते के सिरे पर बैठ जाए तो मुखालिफ सिरा उठ जाता है। लोबो की ये बात कहने ही से ये तसव्वुर मेरे जहन में आया कि अगर हम जहाज के अगले हिस्से में ज्यादा से ज्यादा वजन लाद दें तो क्या वो हिस्सा नीचे नहीं बैठ जाएगा? इस तरह हम इसे खाली करने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।